Good morning, everyone. Today is the topic is the electricity. The sub topic is the Ohm's law. Okay, let us move on screen and understand the concept of the Ohm's law first, and then I will detailing in the Ohm's law in next lectures. Okay, so Ohm's law states that the electrical current flowing through any conductor is directly proportional to the voltage difference. Voltage पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज बिटवीन इट्स। देखो ओम्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, which is here is volt electric current is directly proportional to the voltage, assuming that the physical condition of the conductor। देखो क्या होता है, ये हाइलाइट और यूज करते हैं, ठीक। So Ohm's law states that the electrical current flowing through any conductor, मतलब कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नट। ओके, की पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, flowing through any conductor, not the insulator, directly proportional to potential difference। potential difference means voltage बिटवीन इट्स ends। वोल्टेज दो पॉइंट्स के बीच में मापते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बाद बीच में मापते हैं, इसीलिए बिटवीन इट्स ends। assuming his assuming the physical condition of the conductor does not change, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन जितना है उसका कंडक्टर का डू नॉट चेंज, मींस एनी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। In other words, मतलब ratio of potentials difference between any two points of a conductor to the current flowing through them is constant। मतलब means V by I, V by I equal to constant, means जब भी एक मिनट मीन्स फर्स्ट ये इससे बताता हूँ, ये वाला देखो फर्स्ट क्या बोला, बी जो है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मीन्स the current of a conductor is directly proportional to B, which is the potential difference between two points। Okay, that means in other words, in other words, the ratio of potential difference divided between two points of a conductor divided by I equal to constant, means either you have to conclude that I is directly proportional to B, that is the potential difference, either you have to consider the ratio of the potential difference between two points of a conductor to the current flowing between them is constant। इसमें physical conditions is same, that is the temperature would not be changed। Okay, do not change, if we change the temperature the Ohm's law validation is not okay। Ohm, that is means I directly proportional to B, and yeah, B the ratio of potential by I equal to constant। Either write this one I is directly proportional to B, yeah, either you have to retain the ratio of potential difference divided by the I, that in constant is here is I, we will consider in। Okay, that means if you are consider constant R equal to I, B equal to I R, if you are, yeah, if you are considering B, I is directly proportional to B,
Okay. Either you have to consider the current is directly proportional to voltage. Either you have to consider V by I equal to R. मतलब that is mean constant. Does not move up. Where R is the resistance of the conductor in ohm. You have resistance you measure in ohms. That is this is the symbols. I is the current. I is the current through a conductor. It is measured in amperes. Okay, A, capital A. B is the voltage of potential difference measured across the conductor in voltage. Okay, you have already in the, last lecture I have discussed. देखो ओम्स लॉ एप्लीकेबल इन बोथ डीसी एंड एसी डीसी मतलब डायरेक्ट करंट ओके डायरेक्ट करंट में एप्लीकेबल है एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट मतलब ups and down you have already discussed in next few lectures alternative what is the difference between DC and AC the first this no AC is the alternative currents and DC is the direct current okay Ohm's law is applicable in both AC and SA. The relation between the potential difference and voltage and the current and the resistance in electrical circuits was first discovered by the German physicist George Simon Ohm. जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ही वो डिस्कवर किया गया था इसीलिए ओम्स लॉ बोलते हैं ओके ये रिलेशन क्या करता है बी इक्वल टू आई आर दैट इज मतलब ये वो कोई दो मान लो भी दिया रहेगा तो आई दिया रहेगा तो आर निकल जाएगा आर दिया रहेगा तो आई निकल जाएगा देखो भी इक्वल टू आई आर में दो दो हम लोग को मान कोई मिलेगा तो तीसरा मान निकाल सकते हैं मतलब टू वैल्यूज आर गिवन इन द रिलेशंस ऑफ बी इक्वल टू आई आर वी हैव टू फाइंड द थर्ड ओके नेक्स्ट we have to understood through the Ohm's law क्योंकि Ohm's law को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा नमूना बनाया एनालॉग वाटर कैसा एनालॉग वाटर पाइप एनालॉग वी हैव डिस्कशन इन दिस डिस्कस इन दिस लेक्चर सर इन दिस लेक्चर देखो वाट जो इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है वी कैनॉट सी ओके वी कैनॉट सी ओके तो इसको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वाटर एनालॉग बनाया गया है मतलब एक नमूना वाटर पाइप एनालॉग दैट इज मींस इट इज एग्जांपल समझने के लिए एक नमूना बनाया गया है देखो इसमें नमूना में क्या बोलता है देखो ओम्स लॉ क्या बोल रहा था डिस्क्राइब द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर अप्लाइड एट ईच एंड ऑफ द रेजिस्टेंस वही जो बताया ओम्स लॉ मतलब I directly proportional to V okay across a resistance means okay the current flowing through a resistance through a current flowing through a resistance when different electric potentials voltage are applied at each point of resistance okay ये जो V and I directly proportional to V equal to IR okay ये हो गया रिलेशन निकल गया देखो अब इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन तो देख नहीं सकते हैं तो एक एग्जांपल की तरह मान लो हम लोग वाटर पाइप एनालॉग एग्जांपल नमूना समझेंगे सिंस वी कैनॉट सी द इलेक्ट्रॉन्स को सी नहीं सकते इसीलिए वाटर पाइप एनालॉग के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को बेटर तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस वाटर के नमूने के हेल्प से हम लोग समझेगा देखो नमूना में क्या क्या रहेगा वोल्टेज किसको बोलेंगे क्या बोलेंगे पहले की जगह देखो समझ में आया तो ठीक है नहीं आया तो कमेंट्स करो क्या नहीं समझ में आया ठीक है ओके देखो अगर ये अच्छा रहेगा लेक्चर देखना तुम लोग सेटिस्फाई रहोगे देखो इसमें वाटर एक सेकेंड थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं देखो इसमें जो वोल्टेज रहेगा
वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर। ओके देखो, और करंट रहेगा अमाउंट ऑफ वाटर। देखो, वो वोल्टेज को यहाँ समझेंगे प्रेशर, कितना वाटर जो प्रेशर दे रहे हो, वाटर प्रेशर का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो जान लो कि करंट ज्यादा होगा। कैसे? अरे कोई भी प्रेशर चीज, मतलब पाइप में पानी है, लो प्रेशर में रहेगा तो लो पानी निकलेगा, मतलब पानी आउटलेट जो होगा लो होगा। दैट इज मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो लेस। दैट इज मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रेशर, मतलब वोल्टेज ज्यादा, द अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा। ओके, मतलब भी दैट इक्वल ज्यादा, आई ज्यादा। ओके, अब इसी में एक रेजिस्टेंस किसको मानते हैं यहाँ? पाइप का साइज। पाइप का साइज मानोगे, पाइप का साइज जो पाइप होगा उसका साइज क्या है? छोटा पाइप, छोटा पाइप, स्मॉल पाइप, स्मॉल पाइप, स्मॉल पाइप का साइज रहेगा तो वाटर फ्लो कम होगा, तो मतलब रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट कर रहा है मतलब वाटर फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब फ्लो नहीं होने दे रहा है। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर विल बी increases, मतलब रेजिस्टेंस वाटर पाइप का साइज increases, the water supply will be decreases। मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा मीन्स करंट का फ्लो कम। ओके, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट का फ्लो कम। देखो, देखो वाटर प्रेशर, वोल्टेज, एम्पियर वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो। ओके देखो, मोर साइज ज्यादा, मोर साइज ज्यादा मतलब मोर वाटर अमाउंट ऑफ फ्लो, मतलब लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस। ओके, देखो साइज कम, अमाउंट ऑफ वाटर लेस, दैट इज मोर रेजिस्टेंस। मतलब मीन्स मोर रेजिस्टेंस will be occur when the size of the amount pipe will be decreases the amount of flow of water, that means the current of flow decreases। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कम, लेमैन की तरह। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस। 1 मिनट। देखो, वाटर को क्या चार्ज मान लिया? देखो, वाटर को क्या मान लिया? 1 मिनट। वाटर चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो मतलब करंट, मतलब वही जैसे चार्ज फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज करंट है, ऐसे। ओके, समझ में आया? प्रेशर, प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर मतलब वोल्टेज, वाटर प्रेशर मतलब वोल्टेज। ओके, रेजिस्टेंस, देखो यहाँ रेजिस्टेंस, देखो यहाँ ज्यादा, मतलब मोर लेस रेजिस्टेंस, यहाँ मोर रेजिस्टेंस, मतलब मोर लेस रेजिस्टेंस मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो ज्यादा। यहाँ मोर रेजिस्टेंस मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर लेस। ओके, अब देखो समझने के लिए और थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। देखो, देखो इफ वाटर प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब भी देखो, एक मिनट, सब क्लियर देखना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो, बी कांस्टेंट है, बी इक्वल टू आई आर था। ओके,
ये कांस्टेंट हो गया। ओके, देखो, if water pressure is constant and the resistance increases, resistance increases, the current decreases होगा। देखो, the resistance increases making it more difficult of water to flow, मतलब देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज है मतलब अब वाटर का फ्लो रेट था वो कम कर रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो वाटर फ्लो डिक्रीजेस समझ में आया? डिक्रीज है यहाँ। रेजिस्टेंस डिक्रीज मतलब थोड़ा सप्लाई को कम कर रहे हैं, मतलब सप्लाई को कम कर रहे हैं मतलब पाइप साइज का कम कर रहे हैं, तो मतलब लेस वाटर ऑफ वाटर आएगा, तो लेस वाटर मतलब मींस करंट कम। देखो एग्जांपल में ये देखो, देखो देखो बी, देखो बी कांस्टेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, आई डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? इफ द रेजिस्टेंस टू, अब देखो दूसरा दूसरा एग्जांपल, अब देखो अब क्या है दूसरा वाला। अब इसमें क्या दूसरा कंसीडर कर रहे हैं, इफ द रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो इज कांस्टेंट, मतलब आर अब कांस्टेंट रह गया। ओके, तो पंप प्रेशर इंक्रीजेस मतलब रेट ऑफ फ्लो इंक्रीजेस, वही भी डायरेक्टली इंक्रीजेस करेंगे मतलब वाटर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मतलब एक कांस्टेंट है मतलब एक साइज दे दिया है नॉर्मल साइज, अब ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज, एक नॉर्मल पाइप ले लिए नॉर्मल साइज का इतना। अब ना हम सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर फ्लो ज्यादा होगा, तो मतलब वोल्टेज ज्यादा करोगे तो वोल्टेज ज्यादा करोगे तो करंट भी ज्यादा आ जाएगा। देखो आर यहाँ कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, बी ज्यादा आई ज्यादा। ओके, ये हो गया, ये हो गया, एक और बच्चा है ना, एक और नहीं, अब ठीक है हो गया। अब क्या देखते हैं, क्या देखो, Ohm's law for the relation between voltage and potential between current and the resistance can be written in three different Ohm's law formula। देखो Ohm's law formula क्या करता है, V और I और R में रिलेशंस लाने के लिए ये रिलेशंस बताता है। V और I और R में क्या रिलेशंस है, ओम्स लॉ के थ्रू जो फॉर्मूला है उसके तहत हम लोग मतलब ज्ञात कर सकते हैं। मतलब भी दिया रहेगा, आई दिया रहेगा और आर दिया रहेगा, मतलब दो दिया रहेगा तो एक निकाल सकते हैं। देखो इसमें लिखी तो रहा है, देखो if we know any two values so we can calculate the third value by using the Ohm's law relationship। b equal to I r जो है, b equal to I है, b equal to I r I, इसमें से बी देखो, बी इक्वल टू आई आर मतलब कोई भी एक दिया, एक ये दिया रहे ये निकाल लेंगे, बी इक्वल टू आई आर। अब ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे, यही बता रहा है, ये सब डिटेल्स में है। अब देखो ओम्स लॉ का लिमिटेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद देखो ओम्स लॉ फॉर्मूला फॉर पावर, जो पावर का जूल्स हीटिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये डिराइव कैसे होता है, क्या अर्थ होता है कैसे। ये लिमिटेशन पढ़ लेते हैं पहले। देखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन नॉन मेटेलिक कंडक्टर, हम नॉन मेटेलिक कंडक्टर में अप्लाई नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अप्लीकेबल इन नॉन मेटेलिक, इट इज नॉट अप्लीकेबल इन नॉन मेटेलिक कंडक्टर, ये याद करो। अब ये सब मत याद करना है, ये P इक्वल टू के इंटू आई पर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, Ohm's law is not applicable for the following non-linear elements। देखो non-linear elements means unidirectional, non-linear मतलब जैसे non-linear हो गया तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, डायोड,
ये सब नॉन लीनियर मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसलिए इट इज नॉट अप्लीकेबल इन नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स में नॉट अप्लीकेबल है। दो चीज याद करो, अब नहीं देखो एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन नॉन मेटेलिक कंडक्टर। नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं है। कंडक्टर होना चाहिए ना, तो पहले से कंडीशन है यार, इसमें कंडक्टर होना चाहिए। नॉन मेटेलिक कंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं है, डज नॉट अप्लीकेबल। Ohm's law is not applicable into the non-linear elements, मतलब डायोड्स में, सेमीकंडक्टर्स में नॉट applicable, कैपेसिटर्स में नॉट applicable, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्ट देखो नॉन, देखो यहाँ देखो नॉन लीनियर मतलब नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज इन विच द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज नॉन लीनियर। मतलब जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, बी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू आई आर, अभी हम लोग डिराइव किए जो ओम्स लॉ, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉन लीनियर, ये लीनियर होता है जब दो बी और आर, बी और आई का जो ग्राफ बनाओगे, जो कांस्टेंट आता है आर इक्वल टू कांस्टेंट बताया ना, कांस्टेंट, ये एक लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ आता है, ठीक है, ये एक लीनियर ग्राफ आता है जब रुको एक मिनट, ग्राफ बाद में शो कर देगा, अभी नहीं, देखो इसको इरेज करता हूँ। जो v बाई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट था, वो एक लीनियर ग्राफ की, लीनियर ग्राफ देता है, लीनियर ग्राफ। ओके, v मान लो दो, ये दो, मतलब कांस्टेंट आया है ना, कांस्टेंट एक लीनियर ग्राफ देता है, मतलब लीनियर ग्राफ ऐसे, ऐसे v और I, ओके, ये लीनियर ग्राफ देता है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर those in which the relation between the current and the voltage is non linear, ये लीनियर नहीं होता है जब करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, वो नॉन लीनियर होता है, मतलब ऐसे, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, नॉन लीनियर, दैट इज द करंट इज not exactly proportional to applied voltage, मतलब I is directly proportional to B नहीं होता है, तभी तो लीनियर नहीं हुआ, I is not directly proportional to B। तो लिमिटेशन अभी हम लोग समझे, लिमिटेशन क्या होता है, नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स में नॉट अप्लीकेबल, नॉन लीनियर एलिमेंट्स में जैसे कैपेसिटर्स, डायोड, सेमीकंडक्टर का जब ग्राफ करोगे, बनाओगे बी और आई के बीच में, तो लीनियर ग्राफ नहीं होता है, नॉन लीनियर ग्राफ होता है, वो अप्लीकेबल नहीं है, ये लिमिटेशन है। थैंक यू। चलो और क्या है देखते हैं। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, देखो मेटेलिक कंडक्टर, नॉन मेटेलिक कंडक्टर में नहीं है, तो मेटेलिक कंडक्टर अंडर स्टेडी टेम्परेचर, हाँ, मेटेलिक कंडक्टर में अगर अप्लीकेबल है ओम्स लॉ, अगर ये कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का छेड़छाड़ किया तो कंडक्टर का जो भी वैल्यू ऑफ छेड़छाड़ हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, वो कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, तो दैट इज नॉट मींस नॉन ओमिक हो जाएगा, दैट इज मींस नॉन ओमिक हो जाएगा। इसीलिए मेटेलिक में ही करनी है, मेटेलिक होना है चाहिए मेटेलिक कंडक्टर, बट इट इज टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन जो है कांस्टेंट होना चाहिए, इट डज नॉट होल्ड एनी टेम्परेचर वेरीज, ओके, टेम्परेचर वेरीज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वेरीज नहीं हो। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनिलेटरल यूनिलेटरल नेटवर्क्स। यूनिलेटरल नेटवर्क मतलब नेरो कांस्टेंट यूनिवर्सल ट्रांजिस्टर, डायोड्स एंड यूनिलेटरल आर दोज दैट allow flow of current only in the, देखो यूनिलेटरल, यूनि मतलब क्या होता है, यूनि मतलब जानते हो वन, मतलब वन डायरेक्शन में जो करंट बहता है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है।
आप लोग ये नॉट एप्लीकेबल इन यूनिलेटरल नेटवर्क्स। नेटवर्क्स मतलब कोई भी ट्रांजिस्टर का होगा, ट्रांजिस्टर होगा या डायोड्स का होगा, जो भी है यूनिलेटरल नेटवर्क्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ओम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। आई थिंक ओवर। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो हो गया ओम्स लॉ एप्लीकेशन, तब पढ़ रहे हैं डिटरमाइन द वोल्टेज। देखो मेन मकसद तो यही है, ओम्स लॉ का मेन मकसद है V इक्वल टू, जो V इक्वल टू आई आर आया, यही मकसद है। किसी भी कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में हम लोग V और आई आर निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट में, एनी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ का एप्लीकेशन हुआ। ओम्स लॉ मेंटेन द डिजायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में मान लो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसका मेंटेन करना, मतलब मान लो वोल्टेज ड्रॉप 5 ही मेंटेन करना है हमको, 10 नहीं होना चाहिए ड्रॉप। डिजायर वोल्टेज ड्रॉप मतलब 10 वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, तो उसमें हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। So DC and another DC shunt to divert the is also in a DC ammeter and other DC shunt to divert the current. And Ohm's law is also used in DC। ये नहीं यूजफुल लग रहा है हमको, छोड़ दो ये। ठीक, ओम्स लॉ ये तो बता ही दिया। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल, बता दिया। नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स के ये पता नहीं, ये आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्यों दिया है। ठीक है, जिसमें देखो द रेशियो वोल्टेज एंड आई नॉन लीनियर नहीं आना चाहिए, नॉन लीनियर में नॉट एप्लीकेबल। जिसमें कैपेसिटर डायोड होता है, ठीक, लास्ट अभी स्लाइड में बताया। तो हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस इन Ohm's law completed, relay completed, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम बचा है रिमेनिंग। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, देखो थैंक यू फॉर वाचिंग। एनी डाउट्स comment me, and subscribe it and like it and share it. Thank you for watching.